سلطان اور شیر ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کے لیے بستی سے دور ایک گھنے جنگل میں چلے گئے۔ وہ وہاں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن جب وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کا سامنا ایک خوفناک شیر سے ہو گیا۔ عام انسان ہوتا تو ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن ان بزرگ کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہ تھا۔ انہوں نے اطمینان سے شیر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جنگل کے بادشاہ، اگر اللہ نے میرا رزق تیرے پیٹ میں لکھا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیر جو اپنی دہشت کے لیے جانا جاتا تھا، ان بزرگ کے پختہ ایمان کو دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اپنا سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گیا، جیسے وہ ان کا احترام کر رہا ہو۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کا توکل اور ایمان اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ سلطان اور شیر ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کے لیے بستی سے دور ایک گھنے جنگل میں چلے گئے۔ وہ وہاں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن جب وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کا سامنا ایک خوفناک شیر سے ہو گیا۔ عام انسان ہوتا تو ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن ان بزرگ کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہ تھا۔ انہوں نے اطمینان سے شیر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جنگل کے بادشاہ، اگر اللہ نے میرا رزق تیرے پیٹ میں لکھا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیر جو اپنی دہشت کے لیے جانا جاتا تھا، ان بزرگ کے پختہ ایمان کو دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اپنا سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گیا، جیسے وہ ان کا احترام کر رہا ہو۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کا توکل اور ایمان اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ سلطان اور شیر ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کے لیے بستی سے دور ایک گھنے جنگل میں چلے گئے۔ وہ وہاں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن جب وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کا سامنا ایک خوفناک شیر سے ہو گیا۔ عام انسان ہوتا تو ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن ان بزرگ کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہ تھا۔ انہوں نے اطمینان سے شیر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جنگل کے بادشاہ، اگر اللہ نے میرا رزق تیرے پیٹ میں لکھا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیر جو اپنی دہشت کے لیے جانا جاتا تھا، ان بزرگ کے پختہ ایمان کو دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اپنا سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گیا، جیسے وہ ان کا احترام کر رہا ہو۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کا توکل اور ایمان اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ سلطان اور شیر ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کے لیے بستی سے دور ایک گھنے جنگل میں چلے گئے۔ وہ وہاں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن جب وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کا سامنا ایک خوفناک شیر سے ہو گیا۔ عام انسان ہوتا تو ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن ان بزرگ کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہ تھا۔ انہوں نے اطمینان سے شیر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ جنگل کے بادشاہ، اگر اللہ نے میرا رزق تیرے پیٹ میں لکھا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیر جو اپنی دہشت کے لیے جانا جاتا تھا، ان بزرگ کے پختہ ایمان کو دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اپنا سر جھکا کر ایک طرف ہٹ گیا، جیسے وہ ان کا احترام کر رہا ہو۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کا توکل اور ایمان اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ سلطان اور شیر ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کے لیے بستی سے دور ایک گھنے جنگل میں چلے گئے۔
वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा कि जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, हे जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे
تو अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ये जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा था। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था।
उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है
तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ये जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ये जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ये जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ये जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा हो। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिज्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा था। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिज्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा था। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिज्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा था। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। सुल्तान और शेर, एक सबक आमोज वाक़या। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के लिए बस्ती से दूर एक घने जंगल में चले गए। वो वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे और दिन रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनका सामना एक खौफनाक शेर से हो गया। आम इंसान होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर जरा भी खौफ न था। उन्होंने इत्मीनान से शेर की तरफ देखा और कहा, ए जंगल के बादशाह, अगर अल्लाह ने मेरा रिज्क तेरे पेट में लिखा है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिखी है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर जो अपनी दहशत के लिए जाना जाता था, उन बुजुर्ग के पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गया और अपना सर झुकाकर एक तरफ टिक गया, जैसे वो उनका एहतराम कर रहा था।
सबक इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है। इन्हीं से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान का तवक्कुल और ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है तो कायनात की कोई भी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत खुद फरमाता है।